آج کا یہ جو سیشن ہے غالباً ہمارا چھٹا ہے 6 منتھ آف مئی سے ہی فیض عام ٹرسٹ کی ساری ٹیم بچوں کی کاؤنسلنگ اور موٹیویشنل اسپیچ کے تقریبیں منعقد کرتے آ رہی ہے. جیسے 10th اسٹوڈنٹ جو واٹ آفٹر 10th انٹر فرسٹ ایئر اور ڈگری، سب کا یہ سیشن رکھنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کا اچھا سا مستقبل بنے، آپ اپنی زندگی میں خوش و خرم رہے اور فیض عام کی یہ جو کوشش اور محنت ہے وہ کامیاب ہو جائے. تو اسی زمرے میں یہ سارے سیشن منعقد کیے گئے ہیں اور اسی کی کڑی میں یہ ایک سیشن ہے. اس کے بعد پی جی اسٹوڈنٹ کا رہے گا. جوائن ٹاپر ٹیکنالوجیز چوز دیٹ آفر، جبکہ میرا پرائز وائز IBM واز آفرنگ می مور پیکیج کمپیئر ٹو ٹاپر ٹیکنالوجیز. بیک دین وہ 8 lakhs پر اینم میرے کو آفر کر رہے تھے اور IBM واز آفرنگ سم تھنگ اراؤنڈ 10.5 lakhs. اب بات رہی یہ آفرس کیسے آتے ہیں، اٹس آل یو نیڈ ٹو بی گڈ ایٹ واٹ یو ڈو. تو یہ کیسے ہوگا؟ جنرلی ہم لوگ پڑھائی کریں، آپ لوگ BA BCA BBA BCom آئی گیس آل آف BCA ایز ویل اینڈ BBA. تو یہ سب ڈگریز آپ لوگ آل آف یو آر ہیئر. تو ایک کوشچن ہے میرے کو آپ لوگوں سے، ڈو یو نو واٹ ٹو ڈو آفٹر ڈگری؟ کسی آؤٹ آف آل دس آڈینس کسی کے پاس اس کی کلیئرٹی ہے کہ واٹ آفٹر یور ڈگری؟ ایون آپ کبھی سوچیں، یو کین آنسر. کوئی ہے یہاں پہ کوئی سوچے ایون ان یور کالج ٹائم؟ ابھی آئی ہوپ ایوری بڈی کمپلیٹیڈ یور ڈگری رائٹ، اور مے بی ڈوئنگ یور ڈگری اور مے بی ان یور فائنل ایئرس رائٹ. لیکن آپ کے دماغ میں ایک کوشچن فرسٹ یہ رہنا چاہیے تھا، دیٹس دا ٹاپک آف دا ڈے، واٹ آفٹر یور ڈگری. کبھی سوچے اس کے بارے میں آپ لوگ؟ Anybody, be open. Dekho, be open. There's nobody interviewing you here. It's a general question. محترم افتخار حسین صاحب، مینیجنگ ٹرسٹی فیض عام ٹرسٹ، آج کے مہمانان اینڈ موٹیویٹرز اور اس عظیم دیش بھارت اور عظیم امت مسلمہ کی امید، آپ سب لڑکے لڑکیاں یا طلبہ طالبات، آپ ینگسٹرس، بے انتہا مسرت ہے کہ آپ کے درمیان، جیسے ہماری زندگی ٹیچر، میں بھی ٹیچر ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی آپ کے درمیان ہوتی ہے. یہ بڑا اہم موقع ہے کہ اس موقع پر ہم آپس میں اپنے کیریئر کے سلسلے میں ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ جو اب تک بنا ہے اس کے لیے ہم ذرا جو کوششیں کیے ہیں تعلیمی اعتبار سے، اکیڈمیکلی اپنے آپ کو اکوپ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے خواب دیکھے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا ہمارے گریٹ پریزیڈنٹ APJ کلام صاحب، انہوں نے کہا، بار بار کہا، اس سن آپ لوگوں سے آپ خواب دیکھیں، وہ خواب جو آپ کو اس کی تعبیر ہونے تک بے چین رکھے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ خواب وہ فلم انڈسٹری سے مطابق ہو رہا ہے، اس قسم کے خواب. جیسے آپ کی ایک بہن اس شہر میں آپ ہی کی طرح، بہت ساروں کی طرح ایک عام آپ عام جو ہے اس کا کیا کہنا چاہیے بیک گراؤنڈ ہے، سماجی بیک گراؤنڈ ہے کہ والد ان کے بیکری میں کام کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے اسکول کے دوران میں ہمارے درمیان ابھی زندہ ہیں، جنہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا بنیں گے بیٹا تمہارے نوجوان، کیا نام آپ کا؟ ذہن سوال کر رہے تھے کیا بنیں گے، واٹ یو وانٹ ٹو بی. تو اسی جو سوال کیا گیا تو فوراً لڑکی نے کہا کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں سے جو بھی تعلیم، اپنا جو شعبہ آپ نے چوز کیا تھا
वहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं अपने अपने फील्ड में। अब असल आपका टेस्ट यहाँ से शुरू होता है कि जो चीज़ आप पढ़े हैं उसको अमल में लेके आना है और उससे आपको आमदनी आने की जो है ज़रूरत है, ताकि आप खुद अपने हद तक और अपने दूसरे भाई बहन अगर हैं या वालिदैन हैं उनको अब सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो जो है आपके पेरेंट्स और फैज़ान ने आपको पढ़ाकर यहाँ तक पहुँचा दिया है। इसके अलावा जो डिफरेंट फील्ड्स हैं और क्या क्या आप लोग कर सकते हैं उसके बारे में तो प्रोफेसर अनवर खान साहब ने काफ़ी तफसील से आप लोगों को बताया, लेकिन एक छोटा सा इसमें मेरा सजेशन है कि जो भी फील्ड आप लोग अभी तक जिसको परसू करके यहाँ तक ग्रेजुएट हो गए हैं, कोशिश करिए कि उसी चीज़ को आगे बढ़ाकर आप जो है उसको या तो आगे और पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़कर उसी फील्ड में आप माहिरत हासिल करके फिर जॉब के लिए आप जा सकते हैं, या फिर यही लेवल पे वही चीज़ को इस्तेमाल करिए ये जॉब के लिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई लोग बीए करके या कॉमर्स करके जब ये लेवल तक आ जाते हैं तो फिर उनको उनके दोस्तों से या रिश्तेदारों से ऐसी कुछ बातें मालूम होती कि नहीं अरे क्या करके आप टाइम वेस्ट कर दिया, आप जाइए ये फील्ड में, तो फिर मज़ीद आप जाकर दूसरे फील्ड में आप यहाँ से फिर पढ़ना शुरू करें। एक तो आपके पास उतना जो है फीस और आप पे करने का उतना पैसा नहीं है। अब ये स्टेज में आप कमाने के बारे में सोचना है आपको। और दूसरी ये चीज़ है कि परवाह नहीं, थोड़ा वक्त लग जाएगा आपको जो है इस्टेब्लिश होके करने में, मगर ज़िंदगी में जो है कुछ ज़रूर बनकर कुछ स्टेज पे आइए, क्योंकि जहाँ तक हमारी कौम का ताल्लुक़ है, जब तक हम अपने आप को एकदम बहुत ही आला तरीके से वो पोस्ट के लिए तैयार नहीं करते तो हमारी ज़रूरत जो है समाज में दूसरी मतलब नौकरी के लिए हो या किसी और पेशे के लिए हो उसमें मुश्किलात होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आप कमाने भी लगेंगे, आपकी माली हालत बेहतर हो जाएगी। तो जैसे अभी अनवर खान साहब ने कहा कि पे बैक का जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो समाज ने आपको फैज़ान के थ्रू आपकी मदद की, उसी तरीके से आप भी वापस जो है ऐसे इदारों को पैसा दीजिए ताकि आप जैसे और पढ़ने वाले बच्चे या बच्चियाँ उससे फ़ायदा उठाकर जो है आगे बढ़ सके। अक्सर ये एज ग्रुप जो आप लोगों का है इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लिए, एक नौकरी मिल गई, तो जैसे ही पैसा हाथ में आना शुरू होता तो थोड़ी सी ख्वाहिशात भी काफ़ी आगे आ जाती इसमें। तो जैसे पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं कि आपके साथ काम करने वाले उसी ऑफिस में किसी के पास बहुत ही महंगा फ़ोन है, तो आप तनख्वाह मिलती पहले वो चीज़ के पीछे भागते। तो ज़रा थोड़े अपने ख्वाहिशात को कम करिए, ज़रूरत जो चीज़ों की है उस पर ज़्यादा तवज्जो करें। और ये पूरी चीज़ एटीट्यूड की है, कैसा आपका एटीट्यूड है उसके ऊपर मुनसर है। एक जुमला बोलता हूँ जिससे जो है वो होगा कि आजकल के नौजवान की हालत क्या है। वो बोलते हैं कि आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। तो आजू बाजू क्या हो रहा, घर में क्या ज़रूरतें हैं, हमको जो है उसकी फिक्र नहीं है। अपने को तनख्वाह मिल गई, पैसा हाथ में आ गया, चलो अपनी ज़रूरतों को पहले पूरा करें। तो बस इन्हीं चंद अल्फाज के साथ आप लोग को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि ज़िंदगी में आप लोग और आगे बढ़े और कामयाबी हासिल करें। रहेगा। और मैं अपनी इस गुफ्तगू के साथ
जनाब माजिद साहब से गुजारिश करता हूँ जो अशरफुल मदारिस के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये एक वाहिद ऐसा मदारिस है जो 100 साल से गरीब ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम के लिए मेहनत कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ आम ट्रस्ट 1 साल से इस इदारे से जुड़ा है, क्योंकि फैज़ आम भी यही चाहता है कि समाज के बच्चे संभरें और अपने घर के हालात साजगार करें। तो मैं जनाब माजिद साहब से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बंदों को एक बेहतरीन सांचे में पैदा किया, तमाम इंसान। ये बेहतरीन सांचा ये ऐसा है कि एक सांचे के अंदर तमाम इंसानों को नहीं पैदा, हर इंसान के लिए अलग अलग सांचा। ठीक है, मेरा एक अलग सांचा है। मेरा जो सांचा है दुनिया के पहले आदमी से दुनिया के आखिरी आदमी तक नहीं मिलता। ठीक है, आप लोगों का भी उसी तरीके से यू आर यूनिक। आपका जो आइडेंटिटी है वो क्या है? यूनिक है। दुनिया में हर आदमी यूनिक है। उसका सबूत ये है आज की साइंसी दुनिया में कि फिंगरप्रिंट जो एक आदमी का फिंगरप्रिंट होता है वो माँ के पेट में 3 महीने के बाद से या 4 महीने से इसका बनना शुरू हो जाता है। और वो अंधेरे में जो फिंगरप्रिंट बना रहा है, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता कि वो फिंगरप्रिंट कैसा है। ये सिर्फ मिसाल फिंगरप्रिंट की है, लेकिन ये पूरी तख्लीक की बात है। यानी जो पूरा जो है बच्चा या बच्ची माँ के पेट में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास निगरानी के अंदर उसको पैदा फरमा रहा है। तो हमारी अपनी अहमियत जानने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, हम है कौन, हमारी क्या पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को शख्सी तौर पर सलाहियतों, जज्बात के एतबार से, सलाहियतों के एतबार से, आकार के एतबार से, रंग रूप के एतबार से, खदोखाल के एतबार से और माँ बाप के एतबार से। फिर बाहर जाएंगे तो माँ बाप भी जो है अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए हैं जो बदल नहीं सकते। और अल्लाह ताला एक खास जमाने में पैदा करता है। आपका ज़माना कुछ और है, आपके वालिदैन का कुछ और था, आपके दादा दादी का कुछ और था, फिर आपके आने वाले लोगों का एक वक्त अपना अलग है। तो जो इंसान की तख्लीक है वो एक वक्त मुकर्ररा पर हुई है और एक खास सांचे के अंदर हुई है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसको हर एक को एक अपना मकसद देकर पैदा किया है और एक खास मकसद के लिए पैदा फरमाया। तो आप हजरात भी जो है ये फैज़ आम की तरफ से सींचे हुए उसके बाग के फूल हैं। तो ये जो फूल है ये जो है ये लोग माली जो बनकर आप लोगों के सामने जो है आप लोगों को बहम जो है पानी पहुंचाए, बहम जो है जिस वक्त में आपको फर्टिलाइजर की जरूरत थी फर्टिलाइजर दिए, छाँव से बचाए, तेज धूप से बचाए। तो अब आप जो है एक महके हुए फूलों की तरह अब इस बाग से निकल के कहीं जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि कहीं आप जो है मुरझा के कहीं आप मुरझा कर जो है किसी कोने में आप बेकार हो जाते हैं, या अपनी खुशी से जो है किसी जो है महफिल की रौनक बनते हैं, या किसी जो है किसी बड़े का गले का हार बनते हैं। ये आपके अपने नसीब है और इसको बनाना आपके हाथ में। तो अब ये फैज़ आम का जो फैज़ था वो फैज़ आप तक पहुंच चुका। अब आप लोगों से जो फैज़ निकलेगा वो उस फैज़ से कितने लोग फायदा उठा सकते हैं ये आपके गोल में शामिल होना चाहिए। Being a chartered accountant या being a teacher, being a whatever profession you choose, उसके जो है एतबार से आपको आइंदा वाली जो लाइफ है उसमें ये होना चाहिए कि हम अभी तक देखिए एक छोटा सा निज़ाम समझा देता हूँ मैं। अपना जो इंसानियत का जो निज़ाम है ख्यालात उनके सुनिए हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहता। बहुत सारी बातें जो मैं चाह रहा था अनवर साहब आपको बता दिए हैं। हमारा जो गोल है बस यही रहता कि बच्चियाँ जो हमारे पास स्कूल से बच्चों के काफ़ी बच्चियाँ जो स्कूल से पढ़े माशाल्लाह, तो स्कूल से पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह इंटर करके अब कल डिग्री भी कंप्लीट कर लिए हैं।
तो अब उनका जैसा मैं हर वक्त भी कहता हूँ, उनके पीछे नहीं करना चाहता कि गोल तय करिए, माशाल्लाह आपने अपने गोल भी तय कर लिए, लेकिन ये है कि ये गोल बहुत सोच समझ कर आप तय कीजिए ताकि आप उसको कंप्लीट कर सकें। ऐसा नहीं कि बीच में करके फिर वही बात को अमर साहब बोले कि शादी की बात हो जाती, माँ बाप बोलते बस बहुत हो गया, माँ बाप नहीं बोले तो रिश्तेदार बोलते फूफा चाचा ताया, अरे बच्चे को कहाँ तक पकाया तो चलो शादी कराए। तो या तो फिर शादी करिए या फिर अपने गोल को मुकम्मल करके शादी कीजिए। मैं शादी के खिलाफ नहीं करती, लेकिन आप अगर काम करते हुए अर्न करते हुए अगर शादी करेंगे तो उसमें आपके भी फायदे हैं। कैसे वहाँ एक्चुअली बता दिया हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जहेज़ की जो लानत है उसको आप ख़त्म करेंगे। जो हमारी और सियासत की इदारे सियासत की तहरीक है कि जहेज़ की लानत को बचाया जाए और शादी में दुल्हन वाले कम से कम अखराजात पर अपनी शादी करें, सुन्नत के वो हम जो है तहरीक लेके चले हैं। तो हम यहीं से हमारे फैज़ाम के बच्चों से मैं शुरू किया और माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी बातों को उनके जहन में बिठा दिया और कई ऐसे लड़के लड़कियां जो हैं वो माशाल्लाह कुछ काम करते हुए कमाते हुए शादी किए और उसमें फ़ायदा हुआ कि वो खुद ही अपना शरीक हाथ तय किए, ना कि उनके वालिद हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी आपको गुजारना है, आप जो है ऐसे बनिए, ऐसे लायक बनिए, ऐसे कमाइए ताकि आपके पीछे दोनों की लाइन लग जाना चाहिए। यानी कि माँ बाप आपके परेशान है कि मेरी बच्ची की उम्र बढ़ी है, तो रिश्ता नहीं आ रहा, क्या अल्लाह पर भरोसा करिए, अपना गोल तय कीजिए, लर्निंग बाय अर्निंग ये होना आपका नारा होना चाहिए। इंशाअल्लाह फैज़ाम यहाँ तक जो आपकी मदद किया है, आगे भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है किसी किस्म के तो हम हाजिर हैं। और एक बात जो दूसरों ने कहा उसको 1 मिनट के अंदर मैं कह देता हूँ कि यहाँ तक तो आपने फैज़ पाया है, अब आपका काम है कि आप कमाने के बाद अभी नहीं, वो आप कमाना शुरू कर दिए तो थोड़े थोड़े करके दीजिए ताकि वही पैसा हम दूसरों की तालीम पर खर्च कर सकें। और अब जो है सवालात का वक्त, अगर आप लोगों के जहन में कोई सवालात हैं, हमारे बशीर साहब यहाँ बैठे हैं, वो आपके सवालात का जो जवाब दें।